everyone, myself Neeraj Bharadwaj and I am faculty of geography at Perfection IAS, Karol Bagh, Delhi. Dear friends, अभी हम लोग यूपीएससी का प्रीलिम्स और बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं एंड वेरी सून वी हैव टू अपीयर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो ऑब्वियस सी बात है कि सिंस वी हैव टू प्रिपेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, now in this section of the series of videos we are going to start here at Perfection IAS, Karol Bagh, Delhi, and that will cover the mapping part. Especially mapping part, why is it so important? The reason is that at least every year 5 to 6 questions come directly or indirectly from the mapping, and that mapping covers both world geography part as well as the Indian geography part. अगर हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात देखें तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस आपके पास वर्ल्ड मैपिंग से आते हैं. तो इस सीरीज में हमारी शुरुआत होगी नॉर्थ अमेरिका से, देयर आफ्टर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और फिर हम एशिया पे इसको कंक्लूड करेंगे. And I will try my level best to give you each and every important information so that you can make enrichment in your preparation. So there you see, first of all, North America is there. North America covers mainly three countries. It is a continent which covers 3 countries. And number 1 is there, and that is Canada, then USA, and thereafter it is Mexico. All right, but as you know कि जब भी हम कोई मैपिंग की शुरुआत करते हैं तो that should start from the very basic, and I always suggest to students here that the basic part should be taken as the water bodies which are peripheral. Like if it is North America, तो water bodies कौन कौन सी हैं इसके चारों तरफ से, क्योंकि इससे आइडिया ये बन पाता है that not only you are preparing the political part but also the physical geography aspect. Like if here we see, then this is Bering Strait. Now a very simple question is that has been asked many a times in both UPSC and the Bihar Public Service Commission, that Bering Strait separates which of the following continents. Fine, then here you know that it is North America and here it is Asia. If question comes that which country of Asia and which country of North America, then you know that it is Alaska and that is 49th state of USA. So it is basically USA and Russia because it is the Russian part. Now it is called Bering Strait. Here question is, it is straight. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रेट क्या होता है? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. फाइन, क्योंकि स्ट्रेट्स पर भी हम अलग से मैपिंग का पार्ट करेंगे एंड वी विल सी कि वर्ल्ड वाइड कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जिनके बारे में कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए. तो आप स्ट्रेट होता क्या है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. बेरिंग स्ट्रेट. नाउ here we come and this is Gulf of California. And very surprising to all of you, many of the people, they know that the Gulf of California is part of USA and Mexico, and it is actually a wrong information. Why is it wrong? The reason is that this is the line that you can see from here. It is Mexico which is being separated from the rest of USA. तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जो गल्फ है, ये गल्फ यूएसए में आता ही नहीं है.
Fine, that is the part of Mexico. And yes, this part that is the Californian Peninsula, that is also part of Mexico, not of USA. I hope it is clear to everyone. Now we will see later on that there is a river which drains into Gulf of California, and remember, it is a very famous river. And let me give you a clue that this river is known for its canyon, deepest canyon in the world. क्या आप बता सकते हैं कि वो रिवर कौन सी है जो कि डीपेस्ट कैनियन बनाती है? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, and every correct answer will be mentioned in the upcoming videos and you will be appreciated. So this is that Gulf of California. Now here we come, and it is called Gulf of Mexico. Gulf of Mexico. If you people have already prepared your geography for the upcoming prelims examination and mains, then definitely you must be knowing that this is that Gulf of Mexico part that is actually the epicenter, or you can say it is the cradle of the formation of cyclones, that is tropical cyclones. And these tropical cyclones which are formed over here, इनका specific नाम है. फाइन, आप मुझे बताइए कि उसका स्पेसिफिक नाम क्या है. However, अब ये जो रीजन है पूरा का पूरा गल्फ ऑफ मैक्सिको, दिस गल्फ ऑफ मैक्सिको इज बॉर्डरिंग बोथ यूएसए, मैक्सिको एंड द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका एज वेल एज कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, जिसको कि हम आगे भी देखेंगे. गल्फ ऑफ मैक्सिको. नाउ हियर इट इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस. Gulf of St. Lawrence. Why is it important? Because St. Lawrence is the river which drains into it. और आप जानते होंगे कि जो रिवर ऑफ सेंट लॉरेंस है, दैट सेंट लॉरेंस रिवर, दैट इज द सेकंड मोस्ट बिजी रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नेविगेशन. तो आप इसको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को यहां से आप देखिए. अब यहां पे देयर इज वंस अगेन another strait, and its name is Davis Strait. And this Davis Strait is there that separates North America from the rest of the Greenland, है ना. और ये जो Greenland है, this Greenland is part of North America. North America geographically means it is part of North American continent, but it is the part of Europe politically, because this belongs to a country of Europe and its name is Denmark. Now here it is the Arctic Ocean. Here it is Arctic Ocean. Here it is Hudson Bay, and here it is James Bay. ऑल राइट. तो ये जो वाटर बॉडीज हैं, ये वाटर बॉडी आपकी यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती हैं. आई होप कि आप इसको अपनी मेमोरी में लेंगे, और उसको करने का तरीका ये है कि आप आउटलाइन मैप खरीदिए वर्ल्ड का, नॉर्थ अमेरिका का, या फिर आप ट्रेस आउट कर सकते हैं, और रोज आप मेरे साथ कुछ इस तरह की प्रैक्टिस करिए, एंड दैट वुड बी एब्सोल्युटली बेनिफिशियल. अब चलते हैं हम नॉर्थ अमेरिका के अंदर. तो नॉर्थ अमेरिका में जब हम अंदर आ रहे हैं, देन व्हाट यू विल गेट, the most important feature, or you can say the striking feature of this one is that there is a presence of a mountain range, and this range comes this way. Its name is Rockies. Up, if we have to learn through mapping part, then there you know that the Rocky Mountain was formed due to a plate collision or the convergence between these two plates.
and these two plates are, one is obviously oceanic, fine, this one is oceanic plate and this one is continental cum oceanic plate. ऑलराइट, तो कोलिजन किसका हो रहा है? ओशनिक प्लेट का और कॉन्टिनेंटल प्लेट का. तो इसका नाम क्या है? तो ओशनिक प्लेट नेम इज जुआन डी फूका and that is the subplate of the Pacific plate, and this is continental plate and its name is North American plate. Now अब अगर इन दोनों का अगर कोलिजन हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन कंप्रेसिव फोर्स विल बी जनरेटेड एंड दिस कंप्रेसिव फोर्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड दैट इज कॉल्ड रॉकीज. That is called Rockies. All right, I hope it is clear to everyone. The highest peak is Mount McKinley. Highest peak is Mount McKinley. All right. Now, the next one that you see, अगर आपने पढ़ा है ज्योग्राफी को and you have good idea of the theory of plate tectonics, so I am very sure that you might be knowing that this part, if it is subducting, the plate which is subducting here along with Benioff zone, so here it will melt down and due to the melting this part will come up as the volcano. और इसकी वजह से क्या होगा कि इस पूरे के पूरे रॉकीज में आपको वॉल्केनिक पीक्स दिखाई देंगे. और ये वॉल्केनिक पीक्स कैसे होंगे? जैसे यहां देखिए, जैसे यहां देखिए, यहां देखिए. अब इसका नाम क्या होगा? माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शस्ता, माउंट हुड, माउंट रेनियर, माउंट शस्ता. अब ये सब क्या है? वॉल्केनिक पीक्स हैं. तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि माउंट हुड कहाँ पे है, माउंट शस्ता कहाँ है, मैच द लिस्ट में आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास ये आंसर है. अगर थोड़ा सा हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर आता है तो वो पूछते हैं कि दैट रॉकी माउंटेन वाज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्लेट कोलिजन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स. तो दिस इज द आंसर, जुआन डी फूका एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है दैट माउंट हुड एंड माउंट शस्ता वेयर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्लेट कोलिजन बिटवीन, तो भी आंसर यही है. दीज थ्री माउंटेन्स आर विच टाइप ऑफ माउंटेन? फिजर इरप्शन और द सेंट्रल इरप्शन. तो ऑब्वियसली यू कैन गिव द आंसर दैट सिंस हियर इट इज द प्लेट कन्वर्जेंस, and in plate convergence always it is the central eruption type of volcano. This is why these are central eruption type of volcanoes. All right, so this is the one part. Now let us move to the next, and here it is. अच्छा, one more thing that I want to add on कि ये रॉकीज एग्जाम्पल किसका है? तो it is example of new folded mountain range. New folded mountain range. What is the meaning of new folded mountain range? So there you know that on the basis of age, folded mountains are categorized into two. One is called the old folded mountain and other is called the new folded mountain. Like on the other side of the North America, there is other mountain and its name is Appalachian. Its name is Appalachian, and this Appalachian is an example of old fold mountain. तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस है एज का. दोनों में डिफरेंस है एज का कि वन इज हार्डली 60 to 90 million year old and this one is at least more than 300 million year old. फाइन. तो इन दैट केस ये काफ़ी पुराना हुआ, ये काफ़ी नया हुआ. अब आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जब हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन को कैटेगराइज करते हैं फर्दर, तो दैट इज कॉल्ड द प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन एंड हर्शिनियन. और इन सारे के सारे में
पुराने ओल्ड माउंटेन्स बने, जैसे इंडिया में अरावलीज बना, जैसे इंडिया में ईस्टर्न घाट्स बने, फाइन, यूराल माउंटेन रशिया में बना। तो ये सारी बातें यहाँ पे ये ओल्ड है और ये न्यू है। अब हम बात करते हैं माउंटेन के बाद जो अलग फीचर आता है उसको हम कहते हैं प्लेट्यूज। तो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज की जब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो देयर यू विल गेट हेयर एंड इट्स नेम इज कैनेडियन शील्ड। You will get here, its name is Columbian Plateau. Other one is here, its name is Great Basin. Other one is here, its name is Colorado Plateau. And other one is here, its name is Mexican Plateau. Let me do proper nomenclature. So this is called Canadian Shield. This one is Columbian Plateau, this one is Great Basin, and this one is Colorado Plateau, and this one is Mexican Plateau. ठीक, तो ये आपने 5 प्लेटूज याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? कैनेडियन शील्ड आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में काम आएगा, क्योंकि यही वो रीजन है जहां पर कि आपको हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। जैसे आप इंडिया में देखेंगे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स वी फाइंड देयर इन द कर्नाटका प्लेट्यू, देयर इन महाराष्ट्र प्लेट्यू, देयर इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो व्हाई वी फाइंड दिस काइंड ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन दीज ओल्ड प्लेट्यूज? The reason is these are one of the oldest masses of the earth's surface and they have good concentration of minerals. तो कैनेडियन शील्ड यहाँ पे है। जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएंगे तो वहाँ आपको मिलता है कि ग्रेट लेक्स के पास बहुत ही बड़ा मास है आयरन ओर का, जैसे वर्मिलियन, जैसे क्यूना माइंस, ये सब के सब इसका पार्ट है। ऑलराइट, और उसके लिए थोड़ा सा आपने वेट करना है। अभी यहाँ पे कोलंबियन प्लेट्यू हैं। अब ये कोलंबियन प्लेट्यू में इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज द आउटकम ऑफ वॉल्केनिज्म, रिसेंट और वॉल्केनिज्म। तो आंसर इज कोलंबियन प्लेट्यू, क्योंकि यहीं पर वॉल्केनिज्म हुआ था। ये पूरा का पूरा प्लेट्यू लावा प्लेट्यू है। जो ग्रेट बेसिन है, दिस इज अनदर प्लेट्यू एंड दिस इज कोलोराडो प्लेट्यू। यही वो है जहां से वो रिवर निकलती है, जिसके बारे में आपको मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने को कहा था। इसी कोलोराडो प्लेट्यू पर कोलोराडो रिवर है विच फॉर्म्स ग्रैंड कैनियन। तो आई होप कि आपको आंसर मिला कि विच रिवर ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड फॉर्म्स डीपेस्ट कैनियन। Its name is Colorado River. And finally it is the Mexican Plateau. अब आपको मालूम होगा कि it is one of the most densely populated plateau in the world. Fine, यहीं पर इसकी famous capital भी है and its name is Mexico City. तो it is mountain and it is plateau. The remaining area is there and that is called Great Plains of North America. अब यही वो रीजन है जहां पर कि इसकी हाई डिग्री ऑफ फर्टिलिटी मिलती है एंड इट इज नोन एज द मेजर सेटलमेंट एज वेल एज द एग्रीकल्चरल लैंड। और यहीं पर आपने इसके फेमस वो ग्रेट लेक्स को देखा होगा। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये है ग्रेट लेक्स का एरिया। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। फाइन, और यहां पे इसका एक इंपॉर्टेंट लेक आएगा एंड दैट नेम इज ग्रेट सॉल्ट लेक। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लेन एरिया है जो कि अपनी फर्टिलिटी के लिए जाना जाता है। तो आई होप कि आपको ये बातें याद रखने में आसानी होगी, आप इसको याद रखेंगे। और अभी हम नॉर्थ अमेरिका पार्ट 2 के वीडियो में आपसे मिलते हैं और वहां हम बात करेंगे कि इसके और इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इंक्लूडिंग हम इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी लेंगे सो दैट कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप बने रहिए हमारे साथ परफेक्शन IAS करोल बाग दिल्ली के साथ। थैंक यू वेरी मच।